Previously attended my sessions. I'm just going to start today's session in the next 2 to 3 minutes. If you can, please rename yourself to your actual name and just write in your chat boxes from where do you belong. सिर्फ अपना लिख दीजिए पाकिस्तान से हैं, आउटसाइड पाकिस्तान है. इफ जो है वो आप पंजाब से हैं या आप कराची सिंध से हैं, इंटीरियर सिंध से हैं, where are you from? Please let us know. So please write in your name maybe, or अगर नाम आपका लिखा हुआ है already तो okay. Dr. Assalamu alaikum, Dr. Durre Huma, she's from Lahore. I'm just going to start in the next 3 to 4 minutes. I'm just waiting for more participants to join in. Walaikum Assalam, Dr. Sheba. We'll be having a very good session today. Just to let you know that I have asked a few of my colleagues who are working in various parts of the world to just give an introduction of, how to, get a job or what is the eligibility to work in that particular place. So I've asked my colleagues from Canada, from UK, from Ireland, from Saudi, and of course, Pakistan to hai hai. And there are around 6-7 countries. जिसमें Australia भी है, UAE भी है. So they'll all be talking about the eligibility criterias and how, if you plan to move out of Pakistan, so what are your future prospects in that specific country. And Assalamu alaikum, Dr. Rahim, Dr. Anam, Abrar, congratulations if you're the same Abrar who has passed your MCPS. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम. मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपकी गाइडेंस ने और आपकी टीचिंग ने हम सबको इस काबिल बनाया कि हम ये एग्जाम पास कर सकें. यू आर रियली की मेहनत है डॉक्टर अब्रार. मैंने पहले ही कहा था आपसे कि यू विल क्लियर इट, एंड पता चल जाता है एफर्ट जब आते हैं तो साथ साथ जो है सक्सेस भी आ जाती है. अस्सलाम वालेकुम Isha Hasiba, right? I hope I'm taking your name correctly because I guess I've met a few people in Islamabad this time. So should I start? I think I should, because I know कि कहीं पर जो है वो signals नहीं आ रहे, unfortunately. So we are also having a YouTube live session today. और ये YouTube का link जो है वो आप लोगों के साथ share कर दिया जाएगा. So we are not going to be giving you a recording, but we're going to be sharing the YouTube link with all of you so that you can go through it whenever you want to. Assalamu alaikum, Dr. Hareem. Yes, we are going to talk about, the preparatory classes and everything. But पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को, a lot of people keep on asking me कि हम यहाँ जाना चाहते हैं या कहाँ जाएं, It all depends on how, your family circumstances are, where do you want to really stay? What makes you happy? What do you think are your priorities in life? There's so many different things which help you to make a decision for your career. It's not only about के पाकिस्तान से बाहर भाग जाएं या stay back करें. It is about your priorities. So please, जो भी आप लोग decision लेते हैं अपने आगे career path में, you should know आपके खुद के circumstances क्या है, what can you do, what will not make you happy, what is going to make you more anxious. So you have to take decisions in the best interest of your family and yourself, of course. So it's not a right away जो एक answer होता है ना कि ये कर लें या ये ना करें. It doesn't work like this. So ये जो सवाल होते हैं ना लोगों के अचानक से कि डॉक्टर फरीदा ये यहाँ जाएं या यहाँ ना जाएं, so it's very, very difficult for me to give you a straightforward answer कि हाँ, this is the right thing to do, right? Any way to get exemption to Hazan? Hazan नाम है आपका, is that how you pronounce it? I hope I'm pronouncing it correctly. Hazan, right now जो हमारे experience pathway वाले MCPS हैं, उनको कोई exemption नहीं दिया जा रहा ट्रेनिंग में, क्योंकि आपको पता है ट्रेनिंग होती है ना. सिर्फ एक एग्जाम पास कर लेने से दुनिया के किसी भी हिस्से में ट्रेनिंग में exemption नहीं दी जाती है. कहीं भी आप चले जाएं, दुनिया में कहीं भी आप चले जाएंगे ना, आप कहेंगे मैंने ट्रेनिंग नहीं की है ना, तो आपको ट्रेनिंग की एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी, अनलेस दे आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक कोई एरिया ऑफ नीड है और वहां पर वो लोग जो है ना वो किसी को प्रैक्टिस के लिए बुलाना चाहते हैं. सो दैट्स डिफरेंट. अदरवाइज
ट्रेनिंग का कोई रिप्लेसमेंट या नेमुल बदल जिसको कहते हैं ना नहीं है, ठीक है. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. बट लेट मी गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट सो मेनी डिफरेंट पाथवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल. जो लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं भी है उनके लिए भी पाथवेज हैं. जिनके पास ट्रेनिंग है तो जाहिर है ट्रेनिंग के साथ तो आपके पाथवेज और आपके ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, आई विल बी शेयरिंग अ यूट्यूब लिंक, और इसमें जो नंबर लिखा हुआ है प्लीज इस नंबर को नोट कर लीजिए. महक का इसमें नहीं है. आई एम गोइंग टू सेंड यू अनदर नंबर. तो एंड में जब मैं आप लोगों को नंबर शेयर करूंगी, प्लीज नंबर शेयर ले लीजिएगा. जिन लोगों के यहाँ पर नहीं इंटरनेट इतना अच्छा चल रहा है, काइंडली यू नो आस्क अस टू. जी जी महक. नहीं, डॉक्टर रबिया हियर. Yes. मैम आपसे आपसे एक कंफ्यूजन थी जो मुझे क्लियर करनी थी. मैम ये है कि मैंने क्या नाम है, मेरे 5 years Rabia, hold on. Rabia, hold on. See, if I'm going to take your individual questions like this session will never end. Let me just tell you everything about everything, and then you can ask your questions. And I would suggest कि आपके जो भी questions हो ना, put it in the chat box so that जहां जहां मुझे लगेगा कि आपका ये question का answer मैं दे सकती हूँ, मैं वहां पर वो answer दे दूंगी. ठीक है? So Okay, just put it in the chat box, and I'll keep on reading. Thank you. Okay, right. Preparation Shiba, right time is today. ठीक है. सो सबसे बेस्ट प्रेपरेशन स्टार्ट अगर आप करेंगे, हमारा एग्जाम 3 महीने के बाद है, प्रेपरेशन कब स्टार्ट करें, 6 महीने बाद है, कब स्टार्ट करें, मैं कहूंगी आज. ठीक है. जितना जल्दी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना एंड एग्जाम के पास लोड कम पड़ेगा. ठीक है. इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए. बहुत अरसे से मैं पूछती रही हूँ और ज्यादातर शुरू में लोग जो आंसर देते थे और अब जो आंसर देते हैं, इट इज डिफरेंट. एंड आई एम सो हैप्पी everybody now knows the importance of a general practitioner, an internist and a family physician. So पाकिस्तान में हम general practitioners generally उनको बोलते हैं जो कि MBBS करके directly अपनी practice start कर देते हैं. जो medical officer level के doctors होते हैं उनको हम GP कहते हैं. अगर आपने किसी भी किस्म का post graduate exam दिया है, training की है, so you are a family physician. ठीक है. So पाकिस्तान में we differentiate a GP from a family physician पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम की वजह से. अगर ये पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम आपने नहीं दिया है तो आप जीपी हैं. बट अगर हम बात करें दुनिया भर की, जैसे अगर हम यूके की बात करें, तो वहां पर जीपी का जो वर्ड है वो सिर्फ ट्रेंड लोगों के लिए यूज होता है. ठीक है. जो अनट्रेंड होते हैं उनके लिए हम जीपी का वर्ड यूज करते ही नहीं है. वहां पर जीपी ट्रेनिंग के बगैर हो ही नहीं सकता. राइट. सो जीपी हमारे यहाँ पर अनट्रेंड है और फैमिली फिजिशियन ट्रेंड या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाला है. जबकि बाहर के मुल्कों में जैसे कि यूके में या ऑस्ट्रेलिया में जीपी इज अ ट्रेन्ड फैमिली मेडिसिन प्रोफेशनल. ठीक है. तो वहां फैमिली मेडिसिन का लफ्ज यूज नहीं होता है. तो जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूट. एवरीबडी, आई वुड सजेस्ट कि सब लोग अपने आप को म्यूट रखें so that you know we don't hear your family voices in this session which is irrelevant. Okay, so फैमिली मेडिसिन अप्रोच की जब हम बात करते हैं ना, बहुत सारे लोग, आई एम श्योर यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो कि फैमिली मेडिसिन नहीं पता होगा उनको कि क्या डिफरेंस है उसको, या किस तरीके से इंटरनल मेडिसिन, हाउ इज इंटरनल मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन डिफरेंट. So family medicine, a family physician basically deals with the biopsychosocial model of disease. ठीक है. हम जब पेशेंट से बात करते हैं तो हम उसकी फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, हर किस्म की जो 360 डिग्रीज वाली नीड्स होती है ना, उसको हम केटर करते हैं. So if a patient comes to us like this, we are not going to tell them कि we can't do anything for you, right? And this is a real patient who came to me. So I just wanted to share one case with you, although ऐसे बहुत सारे cases हैं मेरे पास, but I'm just going to share one case with you कि ये एक patient है, आप इसका वो पढ़िए. ठीक है. और मुझे ये बताइए कि इस patient की history में क्या सवाल और आप करना चाहते हैं, या अगर आपके पास ये patient आ जाए as a family physician और ये neurologist आपके जो colleague हैं उन्होंने आपको भेजा है कि भाई ये यहाँ घूम चुका है और भाई आप ये देख लें, हमारी तरफ से तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप क्या करेंगे. राइट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक कोई पॉइंटर दे दीजिए हिस्ट्री में, व्हाट यू वांट टू आस्क. सो डॉक्टर हजान कह रहे हैं कि आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर स्ट्रेस व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज अभी मैं बात कर रही थी बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ डिजीज, और अगर हम इन तीनों चीजों की बात करते हैं तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, स्ट्रेस,
प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, कोई भी किस्म की जो है वो न्यू चेंजेस इन लाइफ, एनी बिहेवियरल चेंज, डिप्रेशन की हिस्ट्री, एंजाइटी की हिस्ट्री, सो मेनी साइको सोशल फैक्टर्स यहाँ पर पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हमने पूछे, आइस हमने पूछी, जिसको हैं आइडियाज, कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशन, तो हमारे पास जो है वो महक प्लीज मेरी शेयरिंग ऑन करिएगा, आई कैन नॉट शेयर। सो जब हमने इसकी आइडियाज, कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशंस पूछी, तो हमें ये पता चला कि ये पेशेंट के 6 महीने पहले ही फादर को पैरालिसिस हुआ था। और इस पैरालिसिस की वजह से there was a lot of mental pressure on the patient, right? And that is the reason she developed unmute. All please mute yourselves. Thank you. And can I please share my screen? Okay. ओके, सो जब हमने इनसे पूछा तो इनको लगा कि इनको फालिज हो गया है, एंड एज आई सेड हर फादर सफर्ड फ्रॉम पैरालिसिस 6 months बैक। सो व्हाट डू यू थिंक इट इज? ए, बी, सी, डी? अगर ये आपकी स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है। ओके, अब हुई है चेंज? नो मैम। ओके, नो मैम। ठीक है जी, वापस से शेयर कर लेते हैं। कैन यू नाउ सी इट या नहीं? मैम स्क्रीन तो आ गई आपकी, लेकिन वो चेंज नहीं हो रही है जो आपने अभी केस प्रेजेंट किया था ना। ओके, राइट, स्लाइड मूव अब हो रही है? यस मैम। Great. So why don't you respond to this? You can just write it in your chat boxes, please. चैट बॉक्सेस में A B C D लिखेंगे, E लिखेंगे, A B C D E। सो ये जिस तरह का MCQ है ना, ये एक थोड़ा सा आई वुड से कि कॉम्प्लिकेटेड MCQ है, बट इसी तरह के थोड़े से लेस कॉम्प्लिकेटेड MCQs आपके MCPS और MRCGP के पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स में आते हैं। जो लोग MRCGP और MCPS अटेम्प्ट करना चाहते हैं, बोथ दीज पेपर्स आर बेस्ड ऑन MCQs, और ये MCQs तकरीबन 200 MCQs या 300 MCQs जो है ना वो आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। MCPS, MRCGP बोथ, ठीक है? सो जस्ट टू लेट यू नो, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर आई थिंक गिविंग करेक्ट आंसर्स। कुछ लोग मलिंगरिंग भी कह रहे हैं, कुछ लोग कन्वर्जन रिएक्शन कह रहे हैं। देखिए, मलिंगरिंग और कन्वर्जन रिएक्शन में ना एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि मलिंगरिंग वाला एक्चुअली, जिस तरह इंग्लिश का वर्ड है ना, दैट पर्सन इज लाइंग, ठीक है, झूठ बोल रहे होते हैं। और कन्वर्जन रिएक्शन जो है ना, इनवॉलंटरी होता है। So the patient does not know what he or she is doing. ठीक है? So there is a huge difference between malingering, झूठ बोलना, and conversion reaction. You don't know what you're doing, right? It is just involuntary. So yes, the answer is C, conversion reaction. ठीक है ना? सो मैं सिर्फ ये आप लोगों को बता रही हूँ कि एक फैमिली फिजिशियन के पास ना इस तरह के, और आई एम श्योर आप लोगों के पास रोजाना ऐसे केसेस आते होंगे, whoever is practicing, patients with body aches, dyspepsia, leukorrhea, headache, neck pain, and they've been to multiple doctors and they would say nobody can diagnose my condition, किसी को मेरी condition ही समझ नहीं आ रही है, and there's so much of, I would say, psychological component to the whole patient's complaints, and you have to deal with it, you have to treat it, you have to manage it, otherwise the patient doesn't get better. ठीक है? So ये जो family medicine है ना, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें you have to deal with this biopsychosocial model of disease. ठीक है? अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ पोस्ट ग्रेजुएट पाथवेज, बता रही हूँ मैं आप लोगों को, जो कि फैमिली मेडिसिन के हैं, और जो रेड कलर में देख रहे हैं। Can you please mute yourselves, everybody? I would request Mehak, if you can change the settings to not to let them unmute, क्योंकि गलती से हो रहा है। I think most of the people are doing it by mistake. तो अगर आप please settings change कर दें, so that we can manage it better. सो स्पेशलिटी ऑफ जनरल प्रैक्टिस, ये आपको जो रेड कलर में नजर आ रहे हैं ना, ये सारी डिग्रीज पाकिस्तान में अवेलेबल है, आप पाकिस्तान में रह के दे सकते हैं। बाकी MRCGP यूके में जाके देना होता है आफ्टर ट्रेनिंग,
ठीक है। और MRCGP इंटरनेशनल से आप यूके में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। MRCGP यूके इंटरनेशनल डिग्री से, ऑल्दो कि ये RCGP यूके की डिग्री है, आप यूके में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आपको वहां रह के 3 साल की या 2 साल की ट्रेनिंग करके और फिर आप MRCGP यूके का एग्जाम देते हैं और वहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यूके में, ठीक है। अमेरिकन बोर्ड ऑफ फैमिली मेडिसिन आप नहीं दे सकते यहाँ पर रहकर, उसके लिए US में जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती है। FRACGP आप यहाँ रह के नहीं दे सकते हैं, इसके पाथवेज के बारे में हम बात करेंगे। एंड देन देयर आर कोर्सेज, डिप्लोमास, ऑल दीज कोर्सेज विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर 2 मेजर डिग्रीज जो कि MCPS है और MRCGP इंटरनेशनल है। तो MCPS और MRCGP इंटरनेशनल के प्रेपरेटरी कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमास जो होते हैं वो आपको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। Saima, we are going to talk about different pathways, right? So you have to stay here with us. So I think अभी I hope लोग जो है वो थोड़ा सा ट्रू से फॉल्स पे आ गए हों इस सवाल के। मुझे लगता है अभी भी कुछ लोग शायद ट्रू कहेंगे, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि दूसरी स्पेशलिटीज में इतनी ज्यादा सैचुरेशन है। मैं अक्सर अब डॉक्टर्स के ग्रुप्स जो होते हैं सोशल मीडिया के, उस पर मैं पढ़ती रहती हूँ कि यू नो, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, आई जस्ट पास्ड माय FCPS, आई कांट गेट अ जॉब, आई एम एन इंटर्निस्ट, आई एम अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट, आई कांट गेट अ जॉब, यू नो। सो इट्स अक्रॉस कि कुछ लोगों को जॉब जल्दी से मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती है, कुछ को पसंद की जॉब मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इस स्पेशलिटी का कोई भी किस्म का स्कोप नहीं है, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू कि गवर्नमेंट के साथ मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं जिसमें फैमिली मेडिसिन के को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है एट ऑल लेवल्स, बिकॉज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हैज एक्चुअली साइंड अप अ MOU विद द गवर्नमेंट कि फैमिली मेडिसिन और प्राइमरी केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज गोल्स जो आप लोगों को पता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज गोल्स, ये सारों में प्राइमरी केयर is the backbone of achieving UHCs, ठीक है। तो ये हमें पता है कि फैमिली मेडिसिन in the coming years it will be huge। इसका स्कोप पाकिस्तान में भी बहुत होगा, क्योंकि हर 10,000 पॉपुलेशन पे 3 फैमिली फिजिशियंस चाहिए, और ये फैमिली फिजिशियंस GPs नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड फैमिली फिजिशियंस हैं जो कि कोई ना कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ होते हैं, ठीक है। उम्मे हानी में अभी आप लोगों को आई एम गोइंग टू कम टू इट, ठीक है। There's a lot of saturation in this specialty. Again, this is completely false, ठीक है। ये false है, saturation बिल्कुल नहीं है, खास तौर पे पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। दुनिया भर में इतना शॉर्टेज हुई हुई है जनरल प्रैक्टिशनर्स की या फैमिली फिजिशियंस की, मैं कहूंगी कि हर जगह पर पाथवेज ओपन हुए हुए हैं, और मैं अभी उन पाथवेज को आप लोगों को खुद यू विल हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं किस तरीके से वहां पर क्या आपको बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में जितने भी हम MBBS करते हैं ना डॉक्टर्स, उसमें से सिर्फ 20% लोग होते हैं जो स्पेशलिटी लेते हैं, बाकी जो सारे 80% है वो GPs बन जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जनरल प्रैक्टिस में बहुत सैचुरेशन है, हर बंदा GP बना हुआ है, लेकिन ये जो GPs हैं ये फैमिली फिजिशियंस नहीं है, ठीक है। जो फैमिली फिजिशियंस है ना, इस 20% की भी 1% है, उससे भी शायद कम है। सो फैमिली मेडिसिन बहुत ह्यूज गैप है यहाँ पर, नहीं है हमारे पास फैमिली फिजिशियंस, और जितने होते हैं उनको बाहर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि वो बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है, एक तो अंडर ग्रेजुएट में हम सब ने, किसी ने, ज्यादातर लोगों ने फैमिली मेडिसिन को अंडर ग्रेड MBBS में एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, अब मैंडेटरी हो गया है। तो अगर 75 आवर्स 5 साल में मैंडेटरी है करना, तो आप सोचिए कि टीचर्स भी आएंगे, फैमिली मेडिसिन की फैकल्टी भी आएगी, डिपार्टमेंट भी बनेगा, ये सब मैंडेटरी हो गया है। इनफैक्ट आउटरीच सर्विसेज या प्राइमरी केयर सर्विसेज के साथ हर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को कहा गया है कि 5 ऐसे सेंटर्स के साथ लिंक अप करके फैमिली मेडिसिन वहां पर स्टार्ट की जाए, ठीक है। सो दिस हैज PMDC की ये नोटिफिकेशंस आई हुई हैं जिसमें
हर हॉस्पिटल के लिए मैंडेटरी है टू हैव आउटरीच सर्विस सेंटर्स एंड टू हैव अ फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, डिप्लोमास आपको पता ही है, कोर्सेज डिप्लोमास थ्रू आउट द कंट्री हो रहे हैं। ये आज से 2-4 साल पहले नहीं होते थे, नहीं अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। केपीके में, इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह पर ओपनिंग्स आती जा रही हैं। आई वुडंट से कि एकदम से कोई रेवोल्यूशन आ गया है, बट द चेंजेस आर प्रिटी फास्ट, ठीक है। जो पहले 5 साल में चीजें हुआ करती थी वो अब 1-1 साल में हो रही हैं। सो थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, द स्कोप ऑफ फैमिली मेडिसिन इज इंक्रीजिंग। रिसेंटली MRCGP लास्ट ईयर रिकग्नाइज्ड हो गया है एज पार्शियली कंपेरेबल टू FRACGP, ठीक है। डॉक्टर सबिहा कह रही है कि हर हॉस्पिटल FCPS डिमांड करता है। डिमांड जो भी करते हो, जब FCPS होंगे नहीं फैमिली मेडिसिन के, तो यकीनन MCPS को ही लेना पड़ेगा और सीनियर रजिस्ट्रार लेना पड़ेगा। एंड वी आर वर्किंग विद CPSP टू मेक दिस हैपन कि MCPS को सीनियर रजिस्ट्रार लेवल पर ले लिया जाए, क्योंकि हमारे पास FCPS है ही नहीं फैमिली मेडिसिन के, बहुत कम है, ठीक है। आई एम वन ऑफ देम एंड देयर वेरी फ्यू पीपल अराउंड। अच्छा, ये जो है ना सारे ट्रेनिंग पाथवेज हैं, और सॉरी ये जो ट्रेनिंग भी है, इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं। तो आप ये देख रहे हो, somebody was asking कहाँ कहाँ अवेलेबल है। इसमें और एडिशंस हो गए, लेट मी टेल यू। FCPS, AKU, इंडस, लियाकत नेशनल, जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, और अब जो है GSMU, इसके अलावा KMU, जो आपका वो है KPK का मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। देन देयर आर CMH, इस्लामाबाद के CMH, सियालकोट के CMH में। सो देयर सो मेनी प्लेसेस जहाँ पे इसके ऊपर भी एडिशंस हुए हैं। दिस इज फ्रॉम अ पेपर पब्लिश्ड इन ब्रिटिश जर्नल, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे एडिशंस हुए हैं, ठीक है। देन वी हैव MCPS ट्रेनिंग पाथवे। अनफॉर्चुनेटली MCPS ट्रेनिंग 3-4 जगहों पर ही है, ज्यादा जगह पर नहीं है। इसी वजह से MCPS का जो एक्सपीरियंस बेस्ड पाथवे है, उसकी एलिजिबिलिटी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। उसमें अगर आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, कोई भी एक्सपीरियंस, जनरल प्रैक्टिस हो या कोई और स्पेशलिटी का एक्सपीरियंस, वो काउंट करके आप एग्जाम पास कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो MCPS का। कुछ वर्कशॉप्स करनी पड़ती हैं। MRCGP इंटरनेशनल के लिए भी सिमिलर रिक्वायरमेंट्स है, कोई वर्कशॉप नहीं करनी होती है। 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, आप डायरेक्टली एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नहीं, MRCGP के लिए आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस काफी है, ठीक है। एंड देन वी हैव दीज WHO वाले कोर्सेज हैं, और जैसे आई डू अ प्रेपरेटरी कोर्स फॉर MCPS एंड MRCGP, जो कि ऑनलाइन होता है एंड विच इज ऑन वीकेंड्स। अगर आप प्रेपरेशन करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन दैट, अगर आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। हम हमेशा पहले किया करते थे, जब भी ECG या हमें कोई कार्डियो की चीज पढ़नी होती थी, तो हम कार्डियोलॉजिस्ट का सेशन अटेंड करते थे। जब हमें TB पढ़नी होती थी, COPD पढ़नी होती थी, तो हम पल्मोनोलॉजिस्ट का सेशन अटेंड करते थे। थिंग्स हैव चेंज्ड, ठीक है। नाउ फैमिली मेडिसिन की जो टीचिंग है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पेशलिटीज एंड वी शुड वैल्यू इट, ठीक है। जितना आप खुद को वैल्यू करेंगे ना, उतना लोग आपको वैल्यू करेंगे। कोई कैप्शन देगा इसके लिए प्लीज। डॉक्टर सैयदा राबिया कह रही है MO भी बहुत सारे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई डोंट नो इफ कविता इज हियर और नॉट, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु वर मेडिकल ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, और उन्होंने, डॉक्टर अबरार आप भी तो गवर्नमेंट सेक्टर में है ना, आई थिंक। तो देर आर पीपल हु हैव मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर, जिन्होंने MCPS किया, MRCGP किया। कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए, कुछ लोगों को बेटर जॉब्स यहीं पर मिल गई हैं। सो देर वेरी गुड एग्जाम्पल्स। महक, मेरा जो है स्क्रीन फिर से चली गई है, इफ यू कैन प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन, थैंक यू। सो कैप्शन दीजिए जल्दी से इसके लिए, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक, आई वांट गुड कैप्शंस प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। सो कविता इज हियर। कविता वाज वन ऑफ आवर मेडिकल ऑफिसर्स। कविता, वुड यू लाइक टू से समथिंग जब तक लोग कैप्शन देते जा रहे हैं? Okay, I like these captions. Believe in yourself. कविता, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स को अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दे दें,
Hello, कि Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। Firstly, it's so been long, like a 1.5 year late. I'm listening like a lecture or any class from you. So That's great, and we are so proud of you, Kavita. All of us are thank you, proud. thank you so much. It's just to be very honest, okay. It's because of you. I started this journey like a very simply something which is not necessary, but then I ended up like this way. I never thought. So obviously, it's my efforts, but your credit is like you teach me it proper and you boost me. No, go through, and this is how I landed up here. So okay, I will just like to add something as you मैम इज टेलिंग एवरीवन कि ये कैसे होता है और हम बहुत ही इसको लाइटली लेते हैं। मैंने खुद भी लिया था एंड आई वाज लाइक ओके कुछ भी नहीं है तो चलो यही कर लेते हैं। इन दैट सेंस आई स्टार्टेड माई सेल्फ। सो लेकिन ये ऐसा नहीं है। अभी अभी मैं मिडल ईस्ट दुबई में हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ एज अ जनरल प्रैक्टिशनर। लेकिन द थिंग इज दैट आफ्टर डूइंग दिस MRC GP MCPS फैमिली मेडिसिन, सो उसको मतलब सिर्फ जीपी को आपको बहुत ज्यादा एज मिलता है कि आपने मतलब किस तरह, क्योंकि सिर्फ जीपी की आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान में भी मैंने, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं, आई वाज MO इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे मैं जीपी शिप करती थी। एंड ट्रस्ट मी लाइक इट्स बीन 7 years आई हैव सर्व्ड एज अ जीपी, क्योंकि गैप आ गया था और मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो इट्स लाइक वी आर नथिंग जस्ट अ टाइटल ऑफ डॉक्टर। We literally left with the title of doctor, but we actually don't know because आपके गवर्नमेंट में लिमिटेशंस होती हैं। कुछ जॉब आप इन्वेस्टिगेशन बोल नहीं सकते हो, अगर आपको आते भी हैं तो आप विद टाइम भूल जाते हो। तो हमने ये फैमिली मेडिसिन का मैंने स्टार्ट किया था पाथवे। सिंपली मैंने जस्ट एक लाइसेंस एग्जाम के लिए मैम को अप्रोच किया था कि चलो मुझे DHA का दुबई मूव करना है एंड आई विल वर्क एज अ जीपी। मैंने कोई स्पेशलाइजेशन का नहीं सोचा था, बट द गुड थिंग इज दैट मैम ने उस चीज का कहा कि इवन DHA यू कैन गो विद द MCPS, and this is how I started. Okay, why not? If I'm taking course, I should apply. So registration MCPS मैंने फैमिली मेडिसिन किया और साथ ही साथ MRC GP भी, और वो भी वन गो में किया। ऐसे नहीं है कि MCPS क्लियर किया एंड देन आई वेंट फॉर MRC GP। और उसके लिए भी मैम से हमने पूछा था और मैम ने कहा था इट इज डूएबल टुगेदर, सो इफ यू थिंक एंड यू शुड गो फॉर इट। सो आई अटेम्प्टेड इन लाइक वन गो। मैंने अभी MCPS कंप्लीट नहीं किया था और MRC GP भी दे दिया। सो इट वॉज बेस्ट डिसीजन, नो डाउट कि आप, और वाकई में वेरी सिमिलर है। और अगर आप, मैंने तो मैम का ही लिया था क्लासेस, इट वाज 6 months, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वेरी कोऑपरेटिव और सारी चीजें आपको बहुत क्लियर और नॉट। और एक और चीज जरूर ऐड करूंगी यहाँ पे कि जो डॉक्टर फरीदा की जो अप्रोच है विच इज लाइक कि नॉट ओनली फॉर एग्जाम ओरिएंटेड, शी एक्चुअली वांट टू मेक अस लाइक लर्न वी प्रैक्टिस। और मेरी प्रैक्टिस भी चेंज हुई, नो डाउट मेरी प्रैक्टिस भी चेंज हुई, मैंने उसमें भी बहुत सारी चेंजेस आई हैं। और मतलब ये इस तरह से हो। अब हमने उसके बाद मैं तो ऑब्वियसली मैं मूव ऑन दुबई हो गई बिकॉज ऑफ दिस MRC GP। ट्रस्ट मी गाइस कि यहाँ पे इतनी सैचुरेशन इस वक्त है जीपी की, नो डाउट, बट दिस MRC GP ने मुझे एज दिया कि मुझे इजीली जॉब हुई और आई गॉट अ जॉब इन अ हॉस्पिटल विद वेरी वेल नोन रेप्यूटेड हॉस्पिटल इन द मिडिल ईस्ट। सो मैं अभी वहाँ जॉब कर रही हूँ। और अच्छी बात ये है कि आप ये नहीं सोच, अच्छा ये एक चीज बहुत कम लोगों को पता है कि इसलिए तो मैक्सिमम को पता है कि MRC GP के बाद आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो और आप एज FRC GP पाथवे के लिए अप्लाई करते हो, विच इज एवरीवन नोज। बट द थिंग इज दैट इवन इन द UAE इन द मिडिल ईस्ट अगर आप आते हो, फिर सऊदी अरब हो गया या दुबई हो गया या मतलब इनके मिडिल ईस्ट के एरिया, तो आपके आफ्टर 3 years एक्सपीरियंस इवन होम कंट्री, अगर आप अपने मुल्क में कंट्री पाकिस्तान में अगर हम लोगों ने जैसे MRC GP कर लिया है और 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन आप प्रैक्टिस करते हो, यू आर एलिजिबल टू वर्क एज अ स्पेशलिस्ट। सो आप दुबई में आके एज अ स्पेशलिस्ट डायरेक्ट आपको जैसे स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आते हैं या फिर स्पेशलाइजेशन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आते हैं, उसी पाथवे में आप वो एग्जाम दोगे, ना कि सिर्फ जीपी का। सो दिस इज दैट मच वैल्यूफुल थिंग, ये यहाँ पे रिकग्नाइज्ड है। और it's been 1 year now, 1.5 year I'm working as a after post MRC GP. So I just need 1.5 year more to work even in UAE. After that I can eligible for a specialist. So मतलब ये इतनी वैल्यूबल चीज है। और मैंने भी एक्सपीरियंस बेस्ड ही किया था और कोई, लेकिन मैं एक जरूर बात कहूंगी क्योंकि डॉक्टर फरीदा हमेशा हमें ये समझाती थी और ऑब्वियसली उस टाइम पे हमारे पास तो टाइम और सर्कमटेंसेस थे नहीं, लेकिन मैं सबको ये आगे भी बोलती हूँ कि इफ यू गाइस हैव टाइम इवन 1 year,
go for diploma training along with this MCPS and MRCGP, because training is actually very very useful and worthful. because हम जब थे ना, हम भी बोलते थे कि MCPS को इक्वल क्यों नहीं कर देते, और FCPS लाइक ट्रेनिंग MCPS वालों के लिए एग्जाम्पशन है, FCPS में ट्रेनिंग का ईयर कम कर देते हैं, हमारे लिए नहीं है या कुछ है। भाई नहीं हो सकता, ट्रेनिंग इज एक्चुअली अ डिफरेंट थिंग, एंड ट्रेनिंग शुड बी टेकन बाय, क्योंकि ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस, it's not only a word, okay 2 साल की, no, it's you learn through training which you can't learn through experience or by doing job. So ये मैंने बहुत अच्छे से रियलाइज किया है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई कर भी रहा होता है कि उस टाइम पे आप, अच्छा यूएई ये नहीं बोलता कि जीपी प्रैक्टिस सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन, पहले आपने ट्रेनिंग के पाथवे में लेके भी करियो, दे ऑल्सो काउंट दैट इज एज लाइक एक्सपीरियंस। सो लाइक ये MRCGP की वैल्यू जो आई थिंक मिडिल ईस्ट वालों की साइड से बहुत कम लोगों को पता है कि एज अ स्पेशलिस्ट आप कम कर सकते हो। तो आप इससे अंदाजा। Thank you, Kavita. Yes. All of your questions should be in the chat box. Please keep on looking at the chat box. Kavita, please, जो भी इनके सवाल आ रहे हैं ना regarding moving to Dubai, तो please Okay. do reply to them so that you know कोई specific किसी के questions हैं तो वो भी हम ले लें। Okay. आयशा, ये वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, ठीक है? अच्छा, ये दिस इज माय कैप्शन, व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू। तो ये जो हम अपने आप को हमेशा एक लो ग्रेड स्पेशलिटी समझते हैं ना, और दूसरे लोग समझते हैं कि ये एक्चुअली जो है इन्होंने पढ़ाई तो इन्होंने की है और हमें क्या आता है, दैट इज एक्चुअली व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, नॉट एक्चुअली व्हाट यू आर, ठीक है? तो जितना अच्छा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रखें, आई एम नॉट सेइंग कि ओवर कॉन्फिडेंट हो, बट पढ़ाई करें, अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएं और फिर कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट FCPS। FCPS पार्ट 1 करना इसमें जरूरी है। FCPS के जो पाथवेज हैं, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कहीं कहीं पर आपको ट्रेनिंग्स इसकी मिल जाएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग ट्रेनिंग में आते हैं, तो हम चाहते हुए भी हमें कैंडिडेट्स भी नहीं मिलते। तो AKU, लियाकत, इंडस, यहाँ पर जियाउद्दीन, GSMU कराची, लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में है, इसके अलावा फातिमा मेमोरियल में डॉक्टर नासिर करवाते हैं, इस्लामाबाद में CMH में है, एज ए सेट सियालकोट में स्टार्ट हो गई है, और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी स्टार्ट हो गई है ट्रेनिंग। सो यू कैन टेक योर पार्ट 1 एंड अप्लाई फॉर फैमिली मेडिसिन ट्रेनिंग। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है पार्ट 1 की, यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 10-10 दफा FCPS पार्ट 1 दिया है और फिर भी पास नहीं हुए, और वो एक वक्त आता है कि जो वो हिम्मत हार देते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको ये भी नहीं पता होता हाउ क्लोज यू आर। हो सकता है अगली अटेम्प्ट में आपकी जिंदगी बदलने वाली हो और आपने छोड़ दिया ये। और आई हैव एग्जांपल्स हु हैव एक्चुअली टेकन, आई विश मुझे याद होता, मैं बुलाती, पता नहीं, डॉक्टर जहीर को आप लोग जानते हैं, वो कभी बताते भी नहीं है उन्होंने कितने अटेम्प्ट्स लिए पार्ट 1 के। माशाल्लाह, ही इज अ कंसल्टेंट एट लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन जामशोरो, राइट, लम्स जो है हमारी, एंड ही इज रनिंग द फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट। ही took FCPS part 1 exam multiple times, passed it, eventually took 4 years of residency, पता नहीं क्या क्या हेल्थ इश्यूज उनके साथ आए, he kept on going and mashallah he is a consultant now. So you never know how close you are, ठीक है? अच्छा, FCPS की हमने बात कर ली। पार्ट 1 किसी भी सब्जेक्ट में दे सकते हैं, मेडिसिन, OBGYN, सर्जरी, पीड्स। तो अगर आपने कोई और का सोच के भी पार्ट 1 दिया है किसी और सब्जेक्ट में, तो आप फैमिली मेडिसिन में आ सकते हैं। 4 इयर्स की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के फर्स्ट ईयर में कॉल्स होती हैं, यूजुअली सेकंड थर्ड फाइनल ईयर में कॉल्स नहीं होती हैं, नाइट कॉल्स नहीं होती, ज्यादातर क्लिनिक्स होते हैं, रूरल रोटेशन होती है, 3 मंथ्स की इमरजेंसी मेडिसिन होती है, और सारी दूसरी स्पेशलिटीज की आपकी रोटेशंस होती हैं, ठीक है? इंडक्शंस इसकी जनवरी और जुलाई में होती है, बिल्कुल MCPS की तरह, और 1 जनवरी से लेके तकरीबन 10 फेब या 15 फेब तक इसकी ओपन रहती हैं। CPSP का पाथवे है ये, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान, और उसकी वेबसाइट पे जाके आप इसकी एलिजिबिलिटी और इसकी वो चेक कर सकते हैं। सिमिलरली MCPS इस CPSP पाथवे, इसकी 2 एलिजिबिलिटीज है, या तो आपके पास 5 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो, कोई भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस, या आपके पास 2 साल की ट्रेनिंग हो। और अनफॉर्चुनेटली ट्रेनिंग 2-3 जगहों पर ही हो रही है, ज्यादा जगहों पर नहीं हो रही है। 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं खुद को CPSP के साथ।
अगले 1-1.5 साल में वर्कशॉप्स हो जाती हैं, 4 वर्कशॉप्स, 3 वर्कशॉप्स होती हैं, एक BLS की ट्रेनिंग होती है। ये चारों चीजें आप कर लेते हैं तो फिर आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और इससे जो आप एग्जाम देते हैं उसको MCPS कहा जाता है, और MCPS आपकी एक पोस्ट ग्रेजुएट अच्छी खासी क्वालिफिकेशन हो जाती है, जो कि UAE में, सऊदी में रिकग्नाइज्ड है, ठीक है, और पाकिस्तान में तो है ही। अच्छा, इसके जरिए आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इस वक्त हम ट्राई कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम CPSP के पाथवेज को लिंक अप कर दें, ताकि जिस तरीके से MRCGP इंटरनेशनल को ऑस्ट्रेलिया ने रिकग्नाइज किया है, उसी तरीके से MCPS और FCPS पाथवे भी रिकग्नाइज हो जाएं, बट इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। 5-year experience base cannot do FCPS, you can do MCPS and MRCGP both, ठीक है। MRCGP इंटरनेशनल की भी सेम जो है वो एलिजिबिलिटी है लाइक MCPS। ईदर यू हैव 5 years of experience, या 2 साल की अगर कोई आपकी ट्रेनिंग है जिसमें जनरल प्रैक्टिस इज अ मेजर पोर्शन, तो फिर आप जो है MRCGP इंटरनेशनल कर सकते हैं। इंडस हॉस्पिटल में हम ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ना सिर्फ कराची में बल्कि लाहौर में, रावलपिंडी में, और बदीन में, ग्वादर में, ये सब जगहों पर MRCGP की 2 साल की हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अगर आप ये ट्रेनिंग फुल टाइम कर लेते हैं 2 साल की, तो फिर आप जो है वो MRCGP इंटरनेशनल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या आपके पास 5 years का एक्सपीरियंस हो तो भी आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है फॉर MRCGP इंटरनेशनल एग्जाम। और इसमें जो है वो कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत या वर्कशॉप की जरूरत नहीं है। न्यूली ग्रेजुएट MRCGP नहीं कर सकता अनलेस ईदर यू हैव 2 years ऑफ ट्रेनिंग और यू हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, एज अ GP और एज अ क्लिनिशियन, ठीक है, कोई भी क्लिनिकल आपने अगर वो किया हुआ है। MO एक्सपीरियंस भी चल जाता है डॉक्टर राबिया, बिल्कुल चल जाता है। MO अगर आपने मेडिसिन वगैरह में किया हुआ है तो वो एक्सपीरियंस भी आपका काउंट हो जाता है, ठीक है, बट दैट इज 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज एज यू ऑल नो ऑस्ट्रेलिया में ओपन हो गई हैं, और मैं आप लोगों को जो है वो आई विल टेक यू टू दोज पीपल हु विल गाइड यू थ्रू इट। अच्छा, डिप्लोमास, बेसिकली जो मेन डिप्लोमा बहुत अरसे से हो रहा है वो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में ये डिप्लोमा हो रहा है, और ये लोग कनाडा के साथ जो उनका कनाडा में जो ट्रेनिंग चाहिए उनको 2 years की, उसके साथ डायरेक्टली लिंकअप करते हैं। तो अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में किया है तो आप किसी भी कनाडा में एज अ GP अप्लाई कर सकते हैं। उसका जाहिर प्रोसेस होता है, आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू, लेकिन ये 2 साल की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो आप डायरेक्टली जाके वहां पर प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं ब्रिटिश कोलंबिया एंड एल्बर्टा के प्रोविंस में, नॉट इन होल ऑफ कनाडा बट दीज 2 provinces, ठीक है। Yes, Infinix X6831, you are right. Please rename yourself so that I don't have to take mobile names, but your actual names. Online courses, CMEs, ये सब हो रहे होते हैं। जैसे I also conduct a preparation for MCPS and MRCGP international कोर्स, जो कि वीकेंड्स पे होता है, सैटरडे संडे के दिन ऑनलाइन होता है। डॉक्टर कविता ने लिया है, और यहाँ पे मुझे और बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं जो कि जिन्होंने कोर्सेज ये मेरे ज्वाइन किए हुए हैं या करना चाहते हैं या कर चुके हैं। सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल एंड पीपल हैव एक्चुअली पास्ड इन यूजुअली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट्स, एंड इट्स वेरी यूजफुल क्योंकि नॉलेज आपकी बढ़ जाती है, आप पास हो जाते हैं, सिंपल एज दैट, कोई और ट्रिक नहीं है इसमें। You have 3 years of experience in NICVD or 2 years gynecologist. Yes, I think so. MCPS, MRCGP दोनों के लिए acceptable होगा, ठीक है? So both. So Dr. Nadia is with us. Dr. Nadia is basically an intensivist, and she joined our course from Saudi से, Riyadh से, right, Dr. Nadia? And mashallah, she is doing really well, and इनके भी एग्जाम सारे निकल ही जाएंगे जाहिर। Okay, so people are talking about the MRCGP international के पैसे। ओके, सो ये आप लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ठीक है, सो नो वरीज। अच्छा, ये सारी ना अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ पाकिस्तान की मैं पहले बात कर रही हूँ। ये आप सिर्फ जरूरी नहीं ना कि आप क्लिनिकल ही रहे, अगर आपने MCPS किया भी है तो आपको बहुत सारी दूसरी चीजों में ना लैटरल पाथवेज भी होते हैं। कुछ लोग जैसे मेडिकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कुछ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, कुछ समझते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अच्छे हैं, सो यू नो दे वुड वांट टू गो इन अदर वो पब्लिक हेल्थ में कुछ लोग जाना चाहते हैं, तो लीडरशिप रोल्स में आ जाते
जैसे अभी हम ग्वादर का जो हमारा सेंटर है इंडस का, वो हमारे एक MCPS डॉक्टर हैं, डॉक्टर अफान, अगर आप लोग जानते हो, डॉक्टर अफान खानजादा, ही इज हेडिंग इट, राइट? तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। एंड एक और एग्जाम्पल है डॉक्टर शाइस्ता, एंड जस्ट see her credentials and what she's doing, and she's going to tell you कि और क्या क्या pathways हो सकते हैं। तो ये 2-3 मिनट की वीडियोस हैं different countries से, people who are working in different countries, and you're just going to have an idea कि आपके लिए बेस्ट क्या है, और आपके लिए बेस्ट क्या है वो सिर्फ आप जानते हैं, डॉक्टर शाइस्ता या मैं या कोई और नहीं जानता। Assalamu alaikum. My name is Dr. Shaista Sareen. Today, let's explore some career opportunities for family medicine specialists here in Pakistan, beside the traditional clinical practice. So, as you know, primary healthcare is a cornerstone of strong healthcare systems, and the need for the trained physician is growing rapidly. First of all, there is a significant role in academics and teaching. A lot of big universities like Aga Khan, LNH, Indus, KMU, NAMS are offering structured training programs in family medicine. You can serve as lecturers, trainers, supervisors, and any degree in healthcare professional education will help you build your career in teaching. Second, in public health and preventive medicine, you can work with national health programs, NGOs, because from polio eradication to maternal and child health, all need the expertise of trained family physician. Third, telemedicine is a growing sector here in Pakistan. Several platforms like Marham, Sehat Kahani, Oladoc offer flexible roles for the family physicians to serve virtually from the comfort of their home. If you want to get some leadership opportunities, you can have excellent roles in hospital management and healthcare management. By taking an additional degree in MPH or MBA, you can get in clinical governance, quality assurance, and healthcare management, both in public and private sectors. And last but not the least, in research, a lot of research institutes and NGOs need the expertise of the trained family physicians to work on the data-driven policies that impact millions. So whether you are passionate about teaching, about technology, preventive medicine, or healthcare management, family medicine is going to offer you an impactful career here in Pakistan. Thank you so much and wish you best of luck. Okay, so thank you, Dr. Shaista. You will be now listening to another doctor from Canada. This is Dr. Chandar. He was my colleague. He has FCPS. He did his MRCGP International. Then he did his FRCGP International. तो ये आपको बताएंगे कि कनाडा में क्या जो है वो prospects हैं। Hello, everybody, and thank you, Dr. Farida. So regarding for the process for family doctors in Canada, as Canada has different process and in each province is also different. So here I will briefly touch the process. Mainly it's called as practice ready assessment. So basically it's the experience pathway for doctors who have already gone through the training and they have experience. So this is the pathway through which I came here. So that I'll share. So let me share my screen and share you what are the training requirements and what is the overall requirements. So in terms of training requirements, mainly it's required as 2 years of postgraduate training. And that should complete the 7 core rotations, as you can see: internal medicine, surgery, gynae, ped psych, and emergency medicine, and also 8 weeks in family medicine. And after that, 2 years of independent family practice is required. And other requirement is English language, which is either B grade in OET or 7 in IELTS. So further, definitely other requirements, but that's we qualify, we have to register with physician applying these things. So after that, these requirements when is able, and in terms of examination, Canadian examination, let me share you good news that starting from July 7, 2025, they have exempted the MCQ E1 Part 1 exam and also the LMCC exam. When I came, it was required. So now from this, you can realize how much doctors are needed here. So they are decreasing their requirements. So training we discussed, examination part we discussed. So after these, if one fulfills the requirement, then there is another exam, which is online exam. It's called as TDM, Therapeutic Decision Making, that you can do after the eligibility. But that is also online. You can do in your own country, and it's a multiple short answer question. Okay, and after that, when you are selected, after all this eligibility, then you are given a 3 years contract with a province, and pay structure is good enough, like around from 300 to 4,000 Canadian dollars, 300 to 400,000 Canadian dollars, and with taxes, of course, per annum. So these are but in that also, first 3 months, you will not be given salary. The first 3 months is called as assessment, practice ready assessment. It's like a work-based assessment. In that, you are given stipends like here, the resident level to senior residents. So only this is the first 3 months one has to go through that period for assessment, and you have to qualify that, then your contract will start.
So these are the one I've just briefly touched because it's a short video. And after that, if you have any questions or anything, then you can contact me on my email, cklohanu@hotmail.com, cklohanu, LOHANO. And also this website, as I've shared you can go through that. And that will, hopefully that will be helpful. Thank you very much. So you see, you have family physicians from Pakistan all over the world, very happy to help you, and they would be happy to answer your questions on their email addresses. Please ये YouTube की जो आप लोगों से link share किया जाएगा, उस पर आप लोग इन सब के जो भी contacts हैं, Hello everybody, and thank you, everybody Dr. has shared Farida. it. So regarding You can see here, ठीक है? And this is Dr. BD. He has recently passed FCPS, and he's going to guide us कि US में जो है वो कुछ नए pathways open हुए हैं, लेकिन ये बता दूं मैं trained लोगों के लिए, जिनकी यहाँ पर कोई भी training है, तो उनके लिए GP pathways open हुए हैं, and that is what he is guiding us about. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर भगवान दास है। मैं FCPS फैमिली मेडिसिन, एक न्यूज़ पेपर में मैंने पढ़ा था कि USA में विदाउट ट्रेनिंग आप वहाँ जॉब कर सकते हैं। उसमें उसके जो USA के जो अराउंड 10 स्टेट्स हैं जहाँ पे आप जो है ना विदाउट ट्रेनिंग काम कर सकते हैं। उसमें हर स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम जो है ना 3 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग होनी चाहिए अपने होम कंट्री से, और उसके साथ में स्टेप्स 1 स्टेप 2 और OET भी क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास है तो आप USA में विदाउट ट्रेनिंग वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। फर्दर जो डिटेल्स हैं उसके अबाउट जो ये लास्ट ईयर जो आया था, ये जो 2024 में ये जो है ना वहाँ पे काम शुरू हुआ था डिफरेंट स्टेट में, और अभी जो है ना ये 10 से ऊपर स्टेट हो गई हैं जहाँ पे अलो कर दिया गया है। तो मुझे ये जो न्यूज़ मिली थी, एक तो मैं लिंक भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी वहाँ देख सकते हैं, और दूसरा वहाँ के जो MDs हैं उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। Okay, so this is the US pathway. जिनके पास ट्रेनिंग है, कोई डिग्री ना भी हो, लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है तो फिर वहां पर आप एज अ GP काम कर सकते हैं विदाउट एनी US रेजिडेंसी। ठीक है, तो US में ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ की ट्रेनिंग recognized है। So this is Dr. Fahad, and mashallah, he has done really well in Saudi Arabia, and he's going to tell us about scope of family medicine in Saudi Arabia. Assalamu alaikum. I am Dr. Fahad Anwar, consultant family physician and associate professor at King Abdulaziz University, Jeddah. If you are a family physician from Pakistan looking to work in Saudi Arabia, you will need to fulfill these requirements to be eligible for practice. First of all, get complete data flow verification of your medical degrees and work experience. Then obtain registration and licensing from Saudi Commission for Health Specialties by passing the Pro-Metric exam. The Saudi Commission will then decide whether you qualify for the post of consultant, specialist, or registrar. Arabic language proficiency is not mandatory, but it can enhance your job chances. Now, the best job opportunities are available for those with FCPS in family medicine and structured training. With 3 or more years of post-fellowship experience, you can be eligible for consultant positions in government and private hospitals and healthcare centers, usually offering salaries between 25 to 40,000 riyal and additional allowances. With less experience, however, FCPS doctors usually begin as specialists, earning around 15 to 25,000 riyal. Doctors with MRCGP International degree and substantial clinical experience can also be eligible for specialist posts depending upon Saudi Council decision on classification, and they can work in private healthcare setups with more or less similar salary packages. Physicians with MCPS typically qualify only for registrar or general practitioner roles. Due to Saudization, such positions are limited now and usually available in remote regions, with expected salaries ranging from 8 to 16,000 riyal. So, with the right qualifications, experience, preparation, and documentation, Saudi Arabia offers reasonable opportunities for career in family medicine. Best wishes for your journey. Thank you. Thank you, Fahad. I think that was very comprehensive. And this is our dearest Dr. Rabia, who had a MRCGP International and an MCPS from Pakistan. And she is working as a consultant in UK. And let me take you to her.
Mhm. Assalamu alaikum, everybody. Thank you so much for inviting me to this excellent forum. My name is Dr. Rabia Mahmood Khan, and I'm a salaried GP as well as a community rehabilitation GP in Oxfordshire, UK. And a little bit about the pathways to becoming a GP in the UK. There are two basic pathways, either a training one or a non-training one. But for both of them, you need to be fully registered with the GMC with a license to practice. And to work as a GP, you need to be on the specialty register as well as a national medical performance list. To obtain a full license to practice and to have your overseas medical qualification recognized, you should have completed your internship or house job. You should have passed your both PLAB 1 and 2 not more than 2 years prior to the application. It is all online, and you can get more information on the GMC website. The training pathway is the most common route to becoming a GP in the UK. Before applying, you need to familiarize yourself with the website called Oriel, a system that manages the recruitment process for training programs in medicine and public health in UK. And you need to submit your certificate of readiness to enter specialty training, which is also obtained through the Oriel website and can be signed off by any consultant, medical director, etc., who is registered with the medical body such as PMC. After that, you can apply for a multi-specialty recruitment assessment exam, which is a computer-based assessment, and it assesses the job competencies for the specialty you're applying. More information is on the website I have. Okay, thank you, Dr. Rabia. So somebody is asking कि एक तो MCPS family medicine में होता है एक अचानक से YouTube पर जो है वो somebody probably just joined in. So of course होता है, and that's what we are talking about, MCPS family medicine, MRCGP International, which is again a family medicine degree, and we're talking about the various pathways which are available for people to either work in Pakistan or if you are trying to move abroad. Okay, so this is our dear Dr. Mataro, and he is in Ireland, and he will be talking about practice in Ireland. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammed Mataro of Ingorjo, a general practitioner based in Ireland. I'm the graduate of AKU Family Medicine Residency Program year 2015. Let me introduce you to the ICGP, which is Irish College of General Practitioners, IMG, which is the International Medical Graduate, Rural GP Program. So we will call it as the ICGP, IMG Rural GP Program, which is the direct route to become a family physician here in Ireland without going through a structured training pathway. So this is a structured 2 years mentorship program by the Irish College of General Practitioners. It is designed for the international medical graduates who have a vast experience in general practice or any structured training in general practice or any good qualification in general practice from abroad. Abroad means like from their parent country. And there's no entry exam required, only a virtual interview would be conducted, which is quite straightforward and very easy to pass. You will work in a supervised rural GP setting. You would be required to attend workshop and attend some courses. You would be provided with a mentor who will be providing you a continuous advice, guidance, and support at your workplace. And at the end, you appear to the MICGP exam. MICGP means the Membership of Irish College of General Practitioners exam. There are two parts of that exam: CKT, which is the clinical knowledge test, a theory exam, and CCT, which is the clinical competency test, which is a OSCE type of exam, practical exam. So once you complete your 2 years mentorship, training, or a practice in a rural GP setting, and you complete your workshop and courses, and you pass your MICGP exam, then you will qualify for the specialist registration in general practice with Irish Medical Council. So that will make you a full GP, a specialist GP here in Ireland, which will be equivalent to the consultant family medicine in Pakistan. So the eligibility criteria for this program is that you must be holding an active registration with the Irish Medical Council. So there is an exemption pathway for Pakistani doctors
who have done their house job after December 2008 to get a general registration with the Irish Medical Council without licensing exam. So there's a lot of information available about that pathway as well. So once you have the IMC registration, then you must be having a vast experience, at least 3 years experience in general practice, or a training in general practice. Or if you have a vast experience in different fields of medicines like family medicine, pediatrics, internal medicine, emergency medicine, women health, etc. So then you would be eligible to apply for this program. And the ICGP would be very keen to hear from you that you are quite committed to work here in Ireland, and you would be looking forward to stay in Ireland for a long period of time. And you will also require a good standing certificate from PMDC and a good standing certificate from your workplace to apply for this program. So this program gives you a brief, a direct, a clear, legal and respected pathway to work and settle in Ireland. It opens the door for you to get the government contract. Once you get your specialist register, then you would be eligible for permanent jobs and government contracts, which are very much rewarding and highly paid. And if you're living in Ireland for like a long period of time, more than 5 years, then you will qualify for the citizenship as well. So that's another benefit of moving to Ireland. Immigration process in Ireland is quite simple, straightforward, and very much user-friendly. So you will enjoy better pay here, better than Pakistan. You will enjoy a better work-life balance and a peaceful lifestyle for your children and family. The schooling is very good here, and the family environment and atmosphere is very safe in Ireland. You can visit icgp.ie and you will get further information regarding this program, and a link to apply directly on the ICGP website for this program. So that's all. Best of luck for your journey. तो लोग मुझसे बहुत सवाल बीच में आ रहे हैं अलग अलग उसके, इसीलिए मैं ईमेल एड्रेसेस जो है इन सब लोगों ने जो है वो हमसे शेयर किए हुए। सो आई वुड सजेस्ट कि जहाँ पे भी आप इंटरेस्टेड है ना, तो उनका ईमेल एड्रेस प्लीज अपने पास नोट कर लें। एंड इट इज़ बेटर अगर आप आगे जाने के बाद पीछे वालों के ईमेल एड्रेसेस मुझसे ना पूछें, बिकॉज आई डोंट हैव अ रिकॉर्ड ऑफ देयर ईमेल एड्रेसेस इन माय माइंड। यस, दिस रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, इट इज ऑन यूट्यूब लाइव राइट नाउ, एंड वी आर गोइंग टू शेयर द यूट्यूब लिंक विद ऑल ऑफ यू सो दैट यू कैन सी इट। वैसे आपको FA एजुकेटर्स के यूट्यूब के चैनल पे ये पूरी रिकॉर्डिंग वैसे भी मिल जाएगी, इवन इफ यू डोंट शेयर इट विद यू, सो यू कैन जस्ट, इट्स पब्लिक एंड फॉर एवरीबडी टू सी। महक ने यहाँ पे यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर दिया है, प्लीज सेव इट विथ योरसेल्फ। जनरली ये मिल भी जाता है, ठीक है। डॉक्टर चंद्र कुमार की ईमेल, डॉक्टर हिना, आपको अब आई कांट गो बैक, सो यू विल हैव टू लुक एट द रिकॉर्डिंग एंड वहां से प्लीज नोट कर लें। डॉक्टर चंद्र इज वेरी पॉपुलर, आई कैन सी, एंड दिस विल बी अनदर पॉपुलर डॉक्टर, डॉक्टर नवेद सिद्दीकी, एंड ही इज सच अ जेंटलमैन। he guides people meticulously for Australian pathway, and he's very generous. तो अगर आप लोगों को इनसे भी कांटेक्ट करना हो, so you can let me share his video with you. Hi everyone, this is Dr. Naved Siddiqui with some great news. If you are a family physician or a general practitioner holding MRCGP South Asia with at least 4 years of continuous clinical experience, you may now be eligible for the PEP specialist pathway through the Royal Australian College of General Practitioners, as it is known as RACGP. This pathway offers a streamlined and prestigious route to live, work and build a rewarding long-term career as a GP in Australia. So, what are the key benefits of the RACGP PEP specialist pathway? The number one and foremost, there is no AMC exam required. You can enter general practice in Australia without the need for AMC exam as it is exempted. Then, second one is immediate GP work rights, no entrance exams. Start working as a GP from day one at the same level and salary scale as locally trained Australian GPs, which is estimated earning range from 150,000 to 350,000 Australian dollars per annum. It is a direct pathway to Australian permanent residency program. You can apply for PR after just 2 years of full-time GP experience and practice over here. And you can apply before that also, depending upon the employer, if you are under 45 years of age. Another one is eligibility to sit in the RACGP fellowship exam just after 6 months. Sit for the prestigious FRACGP exam after 6 months for supervised practice and become an international accredited GP specialist, as your degree will be accepted from all over the world.
So, hundreds of doctors from South Asia have already successfully transitioned through this pathway and now practicing across Australia. The demand for GPs is at an all-time high, creating great opportunities for you. I offer expert support to help you every step of the way, including step-by-step assistance with your RACGP PEP Specialist Pathway application, recruitment and placement in approved Australian clinics, guidance on APRA registration and English language requirements, and guidance of visa processing and relocation assistance as well. My email is edu.work.live.au@gmail.com, and you can contact me if you want more assistance and help. Thank you. So this was Dr. Naved Siddiqui, and he's been doing this professionally as well. So अगर आप लोगों को professional assistance लेनी हो, so you can. Of course, it will be paid. वैसे अगर आपको सवाल पूछने हो, so he will be there to assist you on email as well. He's a very helpful person. कुछ लोगों के सवाल डिप्लोमा का फायदा क्या है? So डिप्लोमा का फायदा ये, as I said, डिप्लोमा हो, कोर्सेज हो, जो I take this preparatory course, ये सब कोर्सेज का फायदा ये होता है कि आप प्रिपेयर हो जाते हैं. अगर आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस है तो आप MCPS और MRCGP दोनों के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं. आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एक अच्छे फैमिली फिजिशियन बनकर प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये फायदा होता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज का. इसके अलावा MCPS के बारे में हम बात करें, हम MRCGP इंटरनेशनल की बात करें और हम बेसिकली FCPS की बात करें, ये 3 मेन डिग्रीज है जो आपको प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करती हैं. कोर्सेज और डिप्लोमास जनरली आपकी नॉलेज और आपके एग्जाम पास करने में आपकी हेल्प करते हैं. जो ज़ियाउद्दीन का डिप्लोमा है वो 2 years का है, एंड दैट हेल्प्स यू to take up the Canadian pathway for general practice. ठीक है, ये मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ so that you know people who are joining in late या जो बीच में से आके सवाल करें उनको आंसर मिल जाए. So I'll just talk about my course. कि ये जो course I am conducting, it is for around 6 months. ठीक है, और ये हर Saturday Sunday या every fortnight Saturday Sunday या Saturdays होता है. So it is always on a Saturday and Sunday, and 3 hours के sessions होते हैं, 2 to 3 hours के. And we cover all the modules here. We practice MCQs, we practice OSCE and TOEIC cases, मतलब clinical exam जो होता है, जो MRCGP and MCPS का होता है, वो हम दोनों चीजें share करते हैं. And I like the idea कि जो chat boxes में लोग Gmail addresses लोगों के और email addresses share कर रहे हैं of all the doctors जिन्होंने हमें बताया है. Thank you very much for doing it. People who are, I think Mehak is doing it. So thank you, Mehak. अच्छा, ये मैं आप लोगों से बता रही हूँ, एक जब व्हेन आई टीच दीज ऑनलाइन सेशंस, तो इस तरीके से ऑनलाइन आप लोगों को सेशंस करवाए जा रहे होते हैं. रीडिंग मटेरियल दिया जा रहा होता है, ऑनलाइन बुक्स दी जा रही होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एंड देन वी डिस्कस केसेस, वी डिस्कस MCQs, वी डिस्कस द मेडिसिन्स अवेलेबल, जेनेरिक्स एंड द ट्रेड नेम्स. सो एवरीथिंग यू नीड टू प्रैक्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये केस है और हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं. दिस इज आवर डियरेस्ट डॉक्टर निम्रा. Or urine in urgency, or in what is the frequency of your urination? I generally wake up once at night, and throughout the day I pass 4 to 5 times a day. Okay, and what about so you took antibiotics for how long? Did you complete the course? 3 days. 3 days, yeah. Okay, 3 days. Okay, so this is just an example of how these sessions work. ठीक है, जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं ना, वो किस तरीके से इंटरैक्टिव होते हैं. So it is not me giving you a lecture and you sleeping. It is about you interacting with me and me facilitating you as a guide कि किस तरीके से आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. ठीक है, so this is how it goes on, and there are multiple feedbacks. I'm not going to go into the details. अब तो बहुत सारे students हैं जो कि I don't think I need feedbacks anymore. I think people are working in places where they wanted to work for so many years. They are doing what they dreamt of doing initially, and I think they've achieved their goals. So I think those people are. मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता नौरीन है. मैंने So I'm not going to get into the details of the feedbacks.
So finally ये एक हमारी final slide है before I take all the questions, जो मैं कुछ questions लूंगी, वरना otherwise I know I can this can continue throughout the night, which I don't want to. तो please आप लोग caption दे दें एक अच्छा सा, and take this picture as a lead, as a motivation for your careers, for your life ahead, and इस तरह काम करें सब लोग. So, अच्छा डिप्लोमा के बारे में सवाल करें. While people, I want captions for people, please. Benefit of diploma मैंने अभी बताया डॉक्टर इकरा. I don't know if people are joining in late या सुन नहीं रहे हैं या आप लोगों के connections weak है because of 8th Muharram, and I'm really sorry. मुझे अंदाजा नहीं था कि अभी भी आज भी जो है वो आधी जगहों पर बंद होगा connections, and so but we do have a YouTube link, so inshallah you will benefit from it. और जो लोगों ने नहीं देख पाए हैं या जिनकी बहुत interruptions हुई हैं, they will be able to see it. Smart efforts lead towards success. Yes, Dr. Kurutlen, that's a very good caption. MCPS का आप पूछ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में? No, Dr. Khurram, MCPS का आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी नहीं है. It is about training. दोनों ही जगहों पर ट्रेनिंग की बात हो रही है, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह पर. So कोई ना कोई आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और कोई पाथवे, कोई भी ट्रेनिंग के पाथवे के थ्रू ही आप जा सकते हैं. Work smart to achieve your goals, think smartly. Yes, those are all good captions. Don't only work hard, work smart. ठीक है, तो सिर्फ हार्ड वर्क ना करें और करते ही जा रहे हैं ना, जैसे मेडिकल ऑफिसर्स हमारे काम करते जा रहे. Work smart, think about your future, think about your goals, think about how you can take yourself at a level above. ये सब सोचें, ठीक है. UAE में कोई एज लिमिट नहीं है. इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया की भी एज लिमिट कोई भी नहीं है. तो अब जो है ना, एज लिमिट्स पर इतना ज्यादा इशू नहीं है. बिल्कुल. बेसिक MBBS का एग्जाम भी नहीं देना पड़ता. ओ मैडम, सर, जो भी है आप, ये सिर्फ डॉक्टर से बात हो रही है, ठीक है. सो इफ यू आर नॉट अ डॉक्टर, दिस सेशन इज नॉट फॉर यू. ओके. MCPS रिकग्नाइज्ड है UAE में, बिल्कुल रिकग्नाइज्ड है. कितनी दे सकते हैं अटेम्प्ट? जितनी देना चाहें डॉक्टर सीमा, कोई अपर लिमिट ही नहीं है. अच्छा, ये बुक है फैमिली मेडिसिन, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट. आई थिंक कि अगर आप लोग ये ऑर्डर करना चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट महक. वी हैव only a few copies of volume 1 left. Volume 2 is in process, and inshallah we will be publishing volume 2 soon. इसमें 50 cases होते हैं, 100 MCQs होते हैं, and it helps you in your clinical exam, in your talks, in your OSCE sessions, and also in your theory, जिसको हम MRCGP में AKT कहा जाता है, Applied Knowledge Test, जिसमें MCQs होते हैं. तो it also helps you. Thank you, Dr. Samar. So Samar का feedback भी आ गया है कि she finds this book very good and outstanding. Thank you. Okay, so ये नीचे जो नंबर है, प्लीज जो है, अगर मैं सॉफ्ट कॉपी इसकी दे दूंगी बेटा, तो जो है सबकी, जितने लोगों की मेहनत है एडिटर्स की इस पर, और वो सब बर्बाद हो जाएगी. तो ऑफ कोर्स यू नो वी हैव टू गेट द कॉस्ट आउट ऑफ इट. कम से कम एट कॉस्ट तो जो है वो बुक सेल होनी चाहिए, राइट. वॉल्यूम 2 बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम वॉल्यूम 1. उसके 50 केसेस बिल्कुल डिफरेंट है, 100 MCQs बिल्कुल डिफरेंट होंगे. दैट्स अ डिफरेंट बिल्कुल वो. लेकिन जिनके पास वॉल्यूम 1 है वो वॉल्यूम 2 ले, जिनके पास दोनों नहीं है तो वॉल्यूम 1 भी ले और 2 भी ले. लेक्चर्स हम PDF में नहीं देती हूँ डॉक्टर हिरा. लेक्चर्स जो है वो आपको एक तो रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं सेशन की, और दूसरा आपको पावर पॉइंट का PDF मिल जाता है, ठीक है. सो पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है ना, उसका PDF मिल जाता है. सो नॉट टू वरी, you can use my slides, you can use my knowledge and give knowledge to other people. I don't mind it at all. आप लोग आगे पढ़ाएंगे, ये सदका जारिया है मेरे लिए. मैं कोई चीज अपनी छुपाती नहीं हूँ. Whatever you want, I'm going to give it to you. ठीक है. Thank you. Volume 2 is coming soon. I can see people, a lot of people are asking me. Ziauddin diploma में interested है, please contact Dr. Fatma Jahangir. She's head of Ziauddin University, Department of Family Medicine. Very, very helpful and nice family physician, and you can just take an appointment from her and talk to her, please. Any separate collections of MCQs for MCPS and MRCGP? अच्छा, what we do is कि जो हमारे courses हो रहे होते हैं ना, उसमें हम सारी presentations जितनी भी होती है ना, तो around 30 to 40 MCQs per
प्रेजेंटेशन डिस्कस हो रहे होते हैं पर मॉड्यूल, तो उसके भी होते हैं, वो अलग होते हैं बिल्कुल एमसीक्यूज। और फिर जो बुक के आप करते हैं तो मिला जुला के ना अच्छे खासे 500+ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। सो आई डोंट नीड टू टेक आउट अनदर बुक फॉर एमसीक्यूज, अभी तो नहीं फिलहाल, एंड आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन जरूर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस और सवाल हैं आप लोगों के, प्लीज अभी भी आई हैव टाइम, यू कैन आस्क मी। हाँ, समर कंपाइल किया जा सकता है, बट यू नो आई रियली डोंट वांट पीपल जस्ट टू प्रैक्टिस फ्रॉम एमसीक्यूज एंड पास देयर एग्जाम्स। आई वांट पीपल टू एक्चुअली गेन कॉम्पिटेंस एंड नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, तो मेरा जो विजन है ना, वो एग्जाम पास कराना नहीं है, बट आपको एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा फैमिली फिजिशियन बनाना है, और उसके लिए जरूरी है कि सिर्फ आप एमसीक्यूज ना करें, पढ़ें भी। ठीक है, सो फिलहाल वो विजन में नहीं है मेरी। एनी स्कोप ऑफ MRCGP, सॉरी चला गया। अच्छा, कराची में कहाँ है? इंडस में है, ज़ियाउद्दीन में है, FCPS MCPS की ट्रेनिंग एंड डिप्लोमास, एंड लियाकत नेशनल में FCPS की ट्रेनिंग है, AKU में तो है ही है, JSMU में है FCPS की ट्रेनिंग, एंड डिप्लोमास बहुत जगहों पर हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये सारी जगहों पर डिप्लोमास है। अच्छा, मॉड्यूल कैसे कवर करती हूँ मैं? तो डॉक्टर हिरा, होता ये है कि जैसे आप एक सैटरडे संडे है तो उसमें पल्मोनोलॉजी कवर हो जाएगा, तो जितने भी प्राइमरी केयर में पल्मोनोलॉजी के टॉपिक्स हैं वो हम 2 दिन में तकरीबन 5 to 6 आवर्स में हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर आपको रीडिंग मटेरियल दिया जाता है जिसपे आप पढ़ते हैं, और MCQ की प्रैक्टिस भी उसी में करवा दी जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MRCGP, यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्लीज यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पे बैठे हुए, प्लीज टेक द लिंक, गो बैक एंड सी द रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये बार बार एक ही सवाल, क्योंकि आपने शायद शुरू का पार्ट नहीं देखा है, सो प्लीज लुक एट इट। ये सब जवाब दे चुकी हूँ मैं। कैनेडा एक्सेप्ट MRCGP विदाउट कैनेडियन एग्जाम्स। कैनेडियन एग्जाम्स देने पड़ते हैं, MCC पाथवे होता है, MCC के एग्जाम देने पड़ते हैं। MRCGP एक्सेप्टेड नहीं है कैनेडा में। 2 ईयर की ट्रेनिंग एक्सेप्टेड है, 2 इयर्स की ट्रेनिंग चाहिए, और उनका एग्जाम देना पड़ता है जो आसान होता है, यू कैन इजीली क्लियर इट। ठीक है, MCC के एग्जाम्स होते हैं। मैम, जो टॉपिक्स आप लेक्चर में कवर करवाती हैं वो टॉपिक्स हमें एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने होते हैं जस्ट? यूजुअली यस, आई वुड से कि टॉक to one of the people who have taken the course. महक अगर इनकी किसी से बात करवा दें जो इनको गाइड कर दे कि क्या उसके अलावा भी लोग पढ़ाई करते हैं। मेरे ख्याल में तो वही टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं और निकल जाता है, मुझे नहीं लगता उसके अलावा लोग पढ़ते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता, बट यू नो यू कैन आस्क योर कलीग्स। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन फैमिली मेडिसिन की हेड का नाम है डॉक्टर फातिमा जहांगीर। ओके, नेक्स्ट सवाल है, नेम ऑफ MCQ पूल अदर देन पास मेडिसिन। यू पास मेडिसिन मीना टू मच फॉर फैमिली मेडिसिन है। आई थिंक कि जो है वो ये बुक में 100 MCQs है। सॉनसन कर लीजिए, सॉनसन इज अ गुड बुक। और कोई पूल, आई थिंक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो पूल्स, जितने भी पूल है ना, और बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि वो वाले पूल्स यूज करें। अगर डॉक्टर नासिर शाह के कोई आपको मिल जाते हैं, आई एम श्योर वो फैमिली मेडिसिन पर्टिनेंट होंगे, दोज यू कैन यूज। और कोई सवाल? इज FCPS इन ट्रेनिंग इन पाकिस्तान पेड? यस, MCPS और FCPS की जो ट्रेनिंग्स होती है ना, जब आप करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, लेकिन अगर आप MRCGP की कोई ट्रेनिंग करते हैं या डिप्लोमास करते हैं या कोर्सेज अटेंड करते हैं तो उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं इंस्टीट्यूट को। ठीक है, सो इसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं, FCPS और MCPS में मिलते हैं, मगर इशू ये होता है कि प्लेसमेंट नहीं मिलती है इतना इजीली। एनी टेक्स्ट बुक यू रिकमेंड? रिविजन के लिए आई रेकमेंड ऑक्सफोर्ड जो जनरल बुक ऑफ प्रैक्टिस है, और कोर्स के लिए मैं बुक्स रिकमेंड नहीं करती। आई रेकमेंड द लेटेस्ट अपडेटेड गाइडलाइंस जो कि मैं प्रोवाइड करती हूँ आप लोगों को, जिसमें अमेरिकन अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस की गाइडलाइंस होती हैं, ब्रिटिश गाइडलाइंस होती हैं, नाइस गाइडलाइंस होती हैं, WHO गाइडलाइंस होती हैं। सो आई प्रोवाइड फॉर एवरी टॉपिक आई टीच, आई प्रोवाइड दोज गाइडलाइंस टू यू एंड आई रेकमेंड एवरीबडी टू रीड दैट। Can a person appear on experience base? Yes, of course. As I said, 5 years का experience काफी है for MRCGP and MCPS exam. FMPT डिप्लोमा, MCPS बिल्कुल कर सकते हैं। FMPT डिप्लोमा अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है डॉक्टर जुनैद, मिला जुला के 5 साल का हो गया है, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो कम से कम MCPS के लिए तो कर ही सकते हैं।
ऑस्की प्रेप एंड मॉक कोर्सेज, हाँ वो भी होते हैं डॉक्टर फहद। एक दफा आप ये मॉड्यूल्स कर लेते हैं, AKT आपका हो जाता है, थियोरी हो जाती है, तो फिर उसके बाद वी ऑल्सो प्रिपेयर यू फॉर टोक्स एंड ऑस्की। थैंक यू डॉक्टर इमराना। डॉक्टर इमराना भी हमारी बहुत लॉयल वो हैं, ट्रेनी पार्टिसिपेंट, कोर्स पार्टिसिपेंट हैं। Thank you everybody for your recommendations. How many time you can see the recorded models? जितनी दफा चाहें आप, आपके पास होगा जब तक, मेरे ख्याल में 6 महीने या साल भर तक आपके पास रहता है। You can watch it as many times as you want. ऑस्की प्रेप के लिए आप वो कर रहे हैं डॉक्टर फहद, महक से प्लीज कांटेक्ट करिए। महक, डॉक्टर फहद इज लुकिंग फॉर ऑस्की प्रेपरेटरी कोर्स, सो प्लीज हेल्प हिम आउट। वी विल बी कंडक्टिंग इट इंशाल्लाह, जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड वी आर स्टार्टिंग बैच 8 ऑफ दिस कोर्स, जो हमारा कोर्स है ये। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन बैच 8, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमारा बैच 8 स्टार्ट हो जाएगा ऑफ द फैमिली मेडिसिन कोर्स। एंड उसके लिए आप महक से कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप डेमो सेशन भी ले सकते हैं, 1 फ्री सेशन, एंड यू कैन सी इफ यू फिट इन, इफ द पेस सूट्स यू, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। सो महक हैज जस्ट पोस्टेड द नंबर्स। What is the scope of MRCGP for people doing it through the experience pathway? Yes, Australia. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और कोई सवाल? ठीक है, सो I'll just email इब्राहिम, मैंने 2-3 दफा जो है वो लिखा है, you can take it from Mehak as well. And thank you everybody, thank you very much for being here. I love you all, I literally love you all. I love all the general practitioners who are aiming to be family physicians and taking postgraduate qualifications in family medicine. I'm so proud of you all for, you know, trying to upgrade your knowledge, trying to be the best doctor for your patients. You literally, all of you deserve